बच्चों के लिए भी अच्छा है ना, तो नॉइज पोल्यूशन कम होता और मध्य प्रदेश की बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरी लोकसभा जनजाति लोकसभा है। मैं आदिवासी समाज का हूँ, गोंड जाति है मेरी। और नागपुर रेलवे स्टेशन जो है, नागपुर में नितिन गडकरी जी की लोकसभा मेरी लोकसभा से लगी हुई है। नितिन गडकरी और नागपुर एयरपोर्ट से मेरा आना जाना है। और जनजाति नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में जनजाति मंत्रालय का मंत्री हूँ। This is his first visit, and he has taken great pains to. Just now he told us how he checked the room, the quality of the cement, everything, the furniture and all that we want to see. So I'm also personally very grateful to him for pointing out these defects that has to be rectified as far as possible. And now I will request director to elaborate on the requirements and those shortcomings that we're having. Thank you, ma'am. Respected Union Minister, sir, and my dear colleagues who are present here today. Miso tuwing kasumi doon na because ama kaya right now, Klang Nuam EMRS School has about 101 students, and the expected date of completion of the construction of the building is March 2025. सर अभी लगभग 110 बच्चे हैं और मार्च 2025 में ये सब कंस्ट्रक्शन खत्म होने का एस्टिमेट किया है। And the physical achievement, we put it around 92%. अभी 92% काम खत्म किया है, ऐसा एस्टिमेट किया है। We are very grateful to the Ministry of Tribal Affairs for having provided us funds to construct schools and initiate the schools for the tribal students of Mizoram. हमें बेहद खुशी है कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री से ऐसा बंदोबस्त किया गया है, पैसा और सब बंदोबस्त किया है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। And we are really more thankful that the Ministry of Tribal Affairs and NEST has allocated 6 more schools for construction. अभी 6 और स्कूल बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से बंदोबस्त किया गया है, इसके लिए भी हम बहुत खुश हैं। As soon as the construction of the school for the 6 new schools are initiated, then we pray that the ministry sanctions 9 more schools that we have proposed. अभी जब सब स्कूल खत्म हो जाएगा तो और नए 9 स्कूल बनने के लिए मिनिस्ट्री बंदोबस्त करने के लिए हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Today I would like to apologize on behalf of the society that in spite of the fund that we had received, like work progress is not expected. It's not as expected, but we will try our best to complete the school by March 2025. मैं इमरत सोसाइटी की तरफ से क्षमा चाहती हूँ कि पैसा का बंदोबस्त होने के बावजूद ऐसा काम अभी लगभग खत्म नहीं हुआ, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं इमरत सोसाइटी की तरफ से। We know that the location of the school is not as per the expectation of the ministry, the distance. अभी आपके हिसाब से ये लोकेशन आपको लगभग अच्छा नहीं लगा, But what I would like to point out is that in Mizoram, available free land is very difficult to find because, as we all know, most of the
land here is owned by private agencies or private people. आपको पहले बताया था कि सब जगह ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल प्रॉपर्टी हो चुकी है और फ्री लैंड पाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। यही जगह सबसे अच्छा, सबसे लगभग सब तैयारी करने के बाद यही जगह मिला है। उसके लिए हम But in future, we will try to incorporate, whenever like the search team goes to locate the new school, then we will try to put the instruction that our Honorable Minister has given today in mind. आपने जो भी इंस्ट्रक्शन बोला है, आपने जो भी अपनी इच्छा बोला है, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। And for the new schools that are being constructed, we have engaged a PSU, ZIPCO. For the new schools to be constructed, we have engaged ZIPCO, a PSU, public sector undertaking. नए स्कूल बनाने के लिए ZIPCO किया गया है। So like we will try to incorporate the guidelines of NEST into the DPR and expand instruction in the ministry. इसके बराबर हम Guidelines. ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइंस को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। Sir, like even though like during the initiation of the starting of the school, what the problem that we had faced was the building construction was very incomplete. But NEST had kept on like telling us like open the school, start the school and all. So it was not ready at all. So like we apologize for that. नेस्ट ने उधर से भी प्रेशर दिया है कि समय से पहले स्कूल शुरू करने के लिए कंस्ट्रक्शन अभी ज़्यादा ख़त्म नहीं हुआ है, पर फिर भी स्कूल जारी करने के लिए वहाँ से संदेश आया था, इसलिए कंस्ट्रक्शन अभी करना स्कूल जैसे तैसे शुरू करना पड़ा, इसलिए इनकम्प्लीट है। But the society will strive towards the betterment of the school to our best level. सोसाइटी अपनी भरपूर कोशिश करेगी कि अच्छे से अच्छे बंदोबस्त हो सके जल्दी से जल्दी। Sir, a few proposals, a few mention that I would like to make is rainwater harvesting system and water storage tank is a must because water is very scarce here. पानी का बंदोबस्त रेन वाटर उसको जमा करने के लिए वहाँ बंदोबस्त करने के लिए बहुत अच्छा होगा। Mizoram has rain from April to September. That is about 5 months, very heavy rains in which we can collect water. So we need tin roofs on that. क्योंकि मिजोरम में बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है और उसी को एडवांटेज में लेने के लिए पानी को जो हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं उसके लिए बंदोबस्त करने के लिए कुछ बंदोबस्त होने से अच्छा होता है। और टिन रूफ बनाने के लिए जो छत है जो टिन का बनने से उधर से पानी कलेक्ट करने के लिए आसान हो जाएगा। Water storage tank. And because of the hilly terrain, playground, it requires large area of land. So can the provisions be made like under the guidelines so that we can have provision for like huge fields, playground for schools? प्लेग्राउंड बनाने के लिए सर आपको पता ही होगा मिजोरम तो अभी हिली एरिया है, इसलिए प्लेग्राउंड बनाने के लिए बंदोबस्त करने के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा ऐसे बोलेंगे। एक विद्यालय जब अपना बना तो विद्यालय में तो ये सब इंक्लूड रहता है, तो अलग से कोई खेल के मैदान के लिए कोई धनराशि का विद्यालय क्यों? सही बात है। विद्यालय का प्लेग्राउंड का खेल का मैदान और विद्यालय एक दूसरे के पूरक हैं, है ना? घर और रसोई घर, बच्चे और खेले वो तो उसी के साथ में DPR में उसी है खेल का मैदान।
but और सभी in प्रकार all की schools, all राष्ट्रीय स्तर के सारे खेल अपन कराना चाहते हैं वहाँ पे, ताकि खेल School दिखाए। school भी पुराना स्कूल में provisions नहीं है। It's a quarter. विद्यालय मंत्रालय The older schools, they were slated for only this thing, half the students of what capacity, 240 students started to done. So the third one in, not double the my or 80 students accommodate and higher. So the third one will give 2 lakh the staff quarters and सर पहले जो एस्टिमेट किया था स्टूडेंट्स भी कम थे और टीचिंग स्टाफ भी कम थे, अभी डबल हो गया है टीचिंग, इसलिए स्टाफ के स्टाफ और स्टाफ की एजुकेशन के लिए क्वार्टर के लिए और बंदोबस्त जरूरी है। Khi tất cả các ông sẽ có cái công tác sĩ mấy nhà hàng ngày rồi suốt là khi nào lên ha cái lần gì đó là thành chairman cái minister đi bộ lên ha lần gì đó là cho không phải tất cả mình làm cái gì. Maria, cái scheme Luis of Katinami. Higi chu at Harris Ho mà sẽ quay sang ha tiền ra để chúng ta đang 48 đang 24. 24. Oh, This was from the order C, 24 crores of that sanction later. Now, the 6 new schools that are sanctioned by NET, it's 48 crores, double the time. It's an older sanction. जो पैसे बंदोबस्त किया था अभी और पहले 24 crore था इस स्कूल के लिए नया स्कूल 6 new schools वो तो 48 double the amount अभी तो कम वाला ये sanction स्कूल और सही में बाद में लिखित रूप में आप जो है वो अपने कुछ बचिए अभी पुराना कम धन पड़ रहा है, उसके लिए क्या है कि आप करें ये तो पहले का ही इंक्लूड में है ना सर। तो अभी नए से देना पड़ेगा। आपको लिखित सब कुछ जानकारी दिया जाएगा सर। अभी के लिए give this to the ठीक I'll give to God. ये रखो। मेरा सौभाग्य है कि मिजोरम की पावन मेरा सौभाग्य है कि मिजोरम की पावन पवित्र भूमि पर हम सबको आने का अवसर मिला। It's my privilege that I have been here in the holy and divine land of the Mizoram. आज विद्यालय के अकस्मात निरीक्षण में हमारे बीच में सौभाग्यवती श्रीमती लालझर मवी जी IAS सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हमारे बीच है। एक बार दर्शन ध्वनि से उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। That Mrs. Lalchar Mavi, IAS, Secretary Tribal Welfare Department is among us, and I would request all to welcome her with a clap of round of applause. हमारे बीच में मेरे परम मित्र श्री वनलाल कुमार जी हमारे बीच है, हमारे बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं। Mr. Banlal Wakaji is also with us, the President BJP. हमारे बीच में डॉक्टर गेरी जी और हमारी बहन सरपंच और हमारे प्रदेश भाजपा की मीडिया प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता ये हमारे बीच में Dr. Gary and Sarpanch and the BJP spokesperson is also with us. हम सभी हमारे
आत्मवत मित्रवत विद्यालय के सभी विद्वान, हमारी बहनें, हमारे भाई, all the respected brothers and sisters, and all officers and teachers. जीवन में शिक्षा, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि शिक्षा वह चाबी है जिससे लौकिक और पारलौकिक जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई नहीं देता, सभी प्रकार के ताले इससे खुलते हैं। Dr. Baba Saheb Ambedkar has said once that the education is the key from which we can open all kinds of law, whether it is heavenly or this world. So it empowers us. सच्चे अर्थों में भारत 1947 को आजाद हुआ और 1947 से जो सरकारें भारत का नेतृत्व करती रही, उन्होंने दूरस्थ अंचलों में रहने वाले जो भाई बहन हैं, चाहे वो वन्यांचलों में रहने वाले हमारे जनजाति समाज के भाई बहन या अन्य, वहां पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवागमन के लिए सड़कें हैं, बिजली है, पीने का पानी है, आवास है, अनेक जो बुनियादी जरूरतें हैं, उस दिशा में पूर्ववर्ती सरकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। Though India got independence in 1947, but the development which was required in every nook and corner of the country, including in the remotest areas like forest, tribal areas, and the hilly areas, that development was never took place. The earlier governments has never considered this place as a part of mainstream and never paid any heed for these areas to develop. Now, अभी नॉर्थ ईस्ट में ये हमारी जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में हमारी सरकार बनी, मित्रों, ये 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। जो आखिरी सिरे पे जो हमारे भाई बहन रहते हैं, उनके जीवन में कैसी खुशियां आए, उनके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की वृद्धि कैसे हो, और सामाजिक समरसता और राष्ट्र की एकता अखंडता को कैसे हम मजबूत करें, इस दिशा में केंद्र की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में शिक्षा को माध्यम बनाकर हमारे जनजाति समाज के जीवन में सभी प्रकार की खुशियां प्रकट हो, उसके निमित्त विविध प्रकार के प्रयत्न हमारी सरकार कर रही है। ये इतने शानदार विद्यालय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि मिजोरम जैसे छोटे से छोटे प्रांत में एक जिले में 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है ना, छोटे छोटे जिले। मेरी जो जिस शहर में मैं रहता हूं 40 लाख का शहर है, ठीक है ना। मेरे लोकसभा क्षेत्र में यानी 38 लाख मतदाता है मेरे, 38 लाख, और 4.5 लाख वोटों से तो मैं जीता हूं सांसद के रूप में। तो भौगोलिक जो स्थितियां हैं, भौगोलिक स्थितियों पर विजय प्राप्त करने के साथ में इन दुर्गम पहाड़ियों में, पर्वत श्रृंखलाओं में जो हमारे भाई बहन रहते हैं, उन बच्चों को बहुत बढ़िया शिक्षा दीक्षा उनको मिले, ये जिम्मेदारी सारे हमारे शिक्षक साथियों पर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम जहां से निकले, मेरे गांव में 25 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था कहीं से भी जाओ, ये स्थिति थी 25 किलोमीटर। लेकिन उन गांवों से हम निकले, उन गांवों से निकलकर
आज भारतवर्ष का नेतृत्व करने, राष्ट्र का नेतृत्व करने का अवसर है। और उसका बोलिए। Since the 2014, the government has changed. Now, this government is focusing in all the areas, including the northeast regions and the hilly regions of the country. Now, the government's focus is to make the life of the people is more vibrant, more prosperous, and peaceful. And in this direction, the government has taken the step to create a very good infrastructure of education. And for this EMRS school is being constructed in the remote area of the country. Though this is very close to Aizawl or the state capital, but still we are trying to make it as a very good model school for all other areas to imitate this thing. The sir has also saying that we consider this thing that the population in the area, in the Aizawl and the district, particularly in the Mizoram and other districts in the hilly areas, are very less. Very sparse population is there. 1 lakh population in one district. But in the such area, the population is very much. There is a huge difference in population. There is a 40 lakh population in this district. 38 lakh voters is there. Voters are there. The winning margin of Lok Sabha election of the Honorable Minister Sir was 4 lakhs of vote. And this is sometimes we consider this thing that this is not the population in some districts in here in Mizoram. So still the government is focusing, though the population is less, but still all basic facilities, irrespective of their sparse population, we should provide these facilities. This area is remote, as sir is also saying that the sir has also started his journey from a small village. That village was so remote that to go anywhere from that village, it was the distance, he had to cover the distance of 25 kilometers to go anywhere. So that was also a remote place. And now the sir has got the opportunity from their journey, he started from the very remote place, and sir has got the opportunity to lead the country and the department and the ministry. So sir understands that the problem faced by the common people, especially in the remote person belonging to remote areas. मैं मेरे गांव में जाता था तो ताप्ती नदी का नाम सुना होगा। ताप्ती नदी बड़ी चौड़ी नदी है, बड़ी नदी है। बाढ़ जब आती थी तो मैं तो छात्रावास में रह के पढ़ता था, तो मेरे एक निश्चित जगह थी जहाँ पे मैं बाढ़ में कूदता था और लगभग 1 किलोमीटर के बाद में उस किनारे पे निकलता था बाढ़ में, तैरते और बहते भी। मतलब मेरा साल में 10-12 बार बाढ़ में कूद के उस साइड में पार होना। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में पढ़कर लिखकर और अपने समाज को, जनजाति समाज को या जो पीछे रह गए भाई बहन, उनके सर्वांगीण विकास के लिए मन में एक दर्द है, एक वेदना है कि किसी भी कीमत पर जो तकलीफें हमने उठाई है वो हमारे भाई बहन पूरे देश भर में जहाँ भी रहते हैं उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। Sir's hometown and village is beside river Tapti. You must have heard that this river is also one of the holy river of India. And during the monsoon, the floods is very frequent around there in that river. At that time, in his childhood, at that time, his early age, there was no facilities and he had to cross that river, the 1 kilometer stretch after swimming in the river during the flood times. So he understands that there's what kind of problem the persons who are residing in the far areas, in the remote areas, they have to face. And considering this thing, he has committed his commitment that we should bring facilities and infrastructure to these areas and complete development, the wholesome development of this place are required, and he is showing his assurance and commitment for this. देखिए, जो काम आप लोगों को मिला हुआ है, ये काम सिर्फ अपने को पेट भरने के लिए और 2 बच्चों को जन्म देने के लिए नहीं मिला है, ठीक है? जो पैदा हुआ उसको मरना ही है, गिर जाते ही है यहाँ से। किंतु जो हमार आने वाली पीढ़ी है जिनको स्मरण करती है
वो उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की वजह से याद करते हैं कि यार ये इन्होंने आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ किया है। ठीक है, तो शिक्षक एक ऐसा कार्य है कि अनेक पीढ़ियों को गढ़ने की जिम्मेदारी हमारे बंधुओं पर है। एक बाबू एक अलग विषय है, ठीक है, अन्य विभागों में नौकरी करना अलग विषय है, लेकिन शिक्षक बनना ये भगवान की बड़ी कृपा है। इस दुनिया में ज्ञान दान को सर्वोपरि कहा गया है, ज्ञान प्रदाता को। The responsibility assigned to us is very noble responsibility, that especially in the field of education. This is very important thing. The person, we are not here just only to earn or feed our families. We are not here just to have a children and just enjoy the life only. We have to give something back to the societies. And अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुझे पूरे भारतवर्ष की अनेक विश्वविद्यालयों में मुझे व्याख्यान देने के लिए जाना पड़ रहा है। लगभग ये समझ लो कि 38 विश्वविद्यालय हो गए हैं जहां पर अलग अलग विषयों पर, और वो बच्चे कौन से रहते हैं जो पीएचडी कर रहे हैं किसी विषयों में, और वो प्राध्यापक रहते हैं जो उनको पीएचडी करा रहे हैं। तो मेरे 38-39 जो विश्वविद्यालयों में मेरा प्रवास हुआ, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं छोटा सा लेखक भी हूं। मेरी पहली पुस्तक जो है आत्मसंवाद, देश के प्रधानमंत्री जी ने उसका विमोचन किया और अनेक भाषाओं में। और मेरी दूसरी पुस्तक है आत्मानुभूति। तो लेखन के क्षेत्र में भी मैं अलग अलग प्रकार से ढेर सारे विषयों को लेकर, तो शिक्षक सिर्फ बच्चों को पढ़ाने तक हमारा काम नहीं है, किसी विषय का विशेषज्ञ बना देना अलग बात है। कोई आईएएस है पर जरूरी नहीं कि वो चरित्रवान हो, क्यों है, जरूरी नहीं कि वो भ्रष्ट ना हो, यानी कुछ उपलब्धि पा लेना और अपने चरित्र है, चिंतन है, व्यवहार है, मानवीय मूल्य है, इस दृष्टि से वो बहुत अच्छा होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन शिक्षक की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को, अपने विद्यार्थियों को सिर्फ गणित, अंग्रेजी ऐसे अन्य विषयों में पारंगत ही नहीं करना है, अपितु उनको अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा चिंतन, अच्छा विचारक, अच्छा समाज सेवी, अच्छा राष्ट्रभक्त उनको बनाना है, ताकि उसका चिंतन सिर्फ पेट प्रजनन, मेरी बीबी मेरे 2 बच्चों तक सीमित न रहे, वो राष्ट्र, धर्म, संस्कृति और वैश्विक चिंतन के साथ में पूरी दुनिया के सामने वो खड़ा हो सके। ऐसे विद्यार्थी के निर्माण की भूमिका आप लोगों के कंधों पर है। ये तब होता है जब अपने कार्य के प्रति श्रद्धा होती है। The person who has taken birth has to die. That's the rule. But we are here for some noble cause, and the responsibility assigned. That is the line of teaching. It's very important thing. The line in which we are, we can change the lives of the people. Not only one people, but we can change the generations ahead. So that is a very important responsibility. मैं ठेकेदार जो है उनसे आग्रह करता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर से, ये सारे जो काम लंबित हैं, इन सारे कामों को यथाशीघ्र इसको पूरा करना है और बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा जो कल्पना की गई है उस कसौटी पे अपन सब लोग खरे उतरेंगे। मैं एक बार फिर सौभाग्य है कि मैडम सेक्रेटरी हमारे बीच में है और आशा करता हूँ उनसे
कि इन सारे बच्चों का एक माँ के रूप में आप संरक्षण करोगी और मानवीय मूल्यों और ये जो दूरस्थ अंचलों में रहने वाले भाई बहन हैं इनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दीक्षा से लेकर इनका कुशल और प्रेरक मार्गदर्शन आप करते रहोगी। यहाँ हम लोग आए, आप लोगों ने स्वागत किया, 2 शब्द कहने का अवसर दिया, उसके लिए मैं मेरे मंत्रालय की ओर से और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय। Contractor here, we have inspected the building and whatever is the shortcoming, I expect the contractor overcome and complete the loopholes and plug the gaps and complete the building within the due time. I also thank the Honorable Secretary ma'am and who has been here, and I consider that she considered all the students of this school as their family, as their children, and take care of these students and ensure that they get the due rights and due benefit of their right of education. And I also thanks everyone for giving me opportunity to inspect, to see, and with the opportunity to speak with you, interact with you. And I thank you all from my ministry, from on behalf of my ministry and myself. And thank you once again, and Bharat Mata ki Jai.